Hello student, today I am going to solve NIS 313 chemistry question paper of November-December 2021. This question paper consists of 30 question, maximum marks is 80 and passing marks is 24, time duration is 3 hours, all questions are compulsory. See description for link of February 2021 NIS 313 chemistry solved question paper. 1. The total number of electrons which can be accommodated in all orbits having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 is C6. यदि मुख्य क्वांटम संख्या 2 तथा एजीमुथल क्वांटम संख्या 1 है तो सभी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? C6. 2. The wavelength of the electromagnetic radiation having a frequency of 368 kHz will be A. 219.3 मीटर. 1368 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य होगी ए 219.3 मीटर. 3. द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर प्यूरिफाइड बाय सी डायलिसिस. कोलाइडी विलयनों का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? सी अपोहन. 4. द रेशियो ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी इज नोन एज ए आइडियल गैस इक्वेशन. पी वी इक्वल टू एनआरटी का अनुपात होता है ए आदर्श गैस समीकरण. 5. AlCl3 इज ए लुईस एसिड लुईस अम्ल. 6. इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन ऑकर्स टू सी जनरेट हीट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन किस लिए होता है? सी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए. 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ SOS बॉन्ड डी H2S2O5. निम्नलिखित में से किसमें SOS आबंध होता है? डी H2S2O5. 8. कंपाउंड A on heating gives an oxide. The oxide is used for white washing when mixed with water. A is C CaOH2. यौगिक A को गर्म करने पर एक ऑक्साइड बनता है. जब इस ऑक्साइड को जल के साथ मिश्रित करते हैं तो सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है. यौगिक A CaOH2. 9. The correct IUPAC name of CH3CO OCOCH3 is C ethanoic anhydride. CH3CO OCOCH3 का IUPAC के अनुसार सही नाम है C ethanoic anhydride. 10. C2H5OH PbR3 X alcohol KOH Y IS2SO4 H2O heat Z. In the above reaction sequence Z is D CH3 CH2OH. C2H5O5 PbR3 alcoholic KOH Y IS2SO4 H2O गर्म Z. उपयुक्त अभिक्रिया अनुक्रम में Z है D CH3 CH2OH. 11. What is meant by molar volume? How is it related with density? What are the STP conditions at which molar value is measured? मोलर आयतन से क्या अभिप्राय है? यह घनत्व से किस प्रकार संबंधित होता है? किस मानक ताप और दबाव में मोलर आयतन को मापा जाता है? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट रिलेटेड टू द डेंसिटी बाय रिलेशन. मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास बाय डेंसिटी. In case of gases, we use their volumes at standard temperature and pressure. For this purpose, 0 degree C or 273 K temperature is taken as the standard temperature and 1 bar pressure is taken as the standard pressure. किसी पदार्थ के 1 मोल का आयतन मोलर आयतन होता है. यह ताप और दाब पर निर्भर करता है. यह घनत्व से इस प्रकार संबंधित होता है. मोलर आयतन बराबर मोलर द्रव्यमान बटा घनत्व. गैसों का आयतन मानक ताप और दाब पर लिया जाता है. इसके लिए 0 डिग्री C या 273 के ताप मानक ताप और 1 बार दाब मानक दाब के रूप में लिया जाता है. 12. 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड वाज फाउंड टू कंटेन 1.890 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 2.110 ग्राम ऑफ क्लोरीन. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड क्लोरीन इन इट. 4 ग्राम कॉपर क्लोराइड में 1.890 ग्राम कॉपर तथा 2.110 ग्राम क्लोरीन है तो इसमें कॉपर और क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा परिकलित कीजिए. मास ऑफ कॉपर इन कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू 1.89 ग्राम.
Mass of chlorine in copper chloride is equal to 2.11 gram. Percentage of copper in 4 gram of copper chloride is equal to 1.89 by 4 into 100 is equal to 47.25%. Percentage of chlorine in 4 gram of copper chloride is equal to 2.11 by 4 into 100 is equal to 52.75%. 13. State Heisenberg uncertainty principle. Write its mathematical expression. हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। Heisenberg uncertainty principle. It states that the position and momentum of microscopic moving particles cannot be determined simultaneously with accuracy or certainty. Mathematical expression. Delta x into delta p is greater or equal to h by 4 pi. Delta x is equal to uncertainty in the position, delta p is equal to uncertainty in the momentum, h is equal to Planck's constant. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म गतिमान कणों की स्थिति और गति को सटीकता या निश्चितता के साथ एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। गणितीय अभिव्यक्ति डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4r। डेल्टा एक्स इक्वल टू स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी इक्वल टू गति में अनिश्चितता, एच इक्वल टू प्लैंक स्थिरांक। 14. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। विसरण और निसरण में क्या अंतर है। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अनदर गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। When gas escapes from a container through a very small opening, it is called effusion. एक गैस के अणुओं का दूसरी गैस में गति करना विसरण है। पात्र के सूक्ष्म छिद्र में से गैस के निकलने को निसरण कहते हैं। 15. State the first law of thermodynamics. What is its limitation? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उल्लेख कीजिए, इस नियम की सीमा क्या है। First law of thermodynamics. Energy can neither be created nor destroyed. The total energy of the universe or an isolated system is constant. The limitation of the first law of thermodynamics is that it cannot tell us the direction of the process. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड या एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर है। ऊष्मागति के पहले नियम की सीमा यह है कि यह हमें प्रक्रिया की दिशा नहीं बता सकता है। 16. By the electrolysis of H2SO4, 50% W by W followed by distillation, compound A is obtained. Compound A react with MnCl2 in alkaline medium to give a brown colored compound B. Identify A and B and also write the chemical equation for the reaction of A with MnCl2. आसवन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड 50% W/W का विद्युत अपघटन करने पर यौगिक A प्राप्त होता है। यौगिक A क्षारीय माध्यम में MnCl2 से अभिक्रिया करके भूरे रंग का यौगिक B बनाता है। A और B को पहचानिए और A की MnCl2 के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। 17. How will you carry out the following conversions? A. Chlorobenzene to toluenes. B. Decanol to decanol. आप निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार संपन्न करेंगे। A. क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में, B. डेकॉल को डेकनल में। Whose fitting reaction can be used to convert chlorobenzene to toluene by making it react to sodium in presence of methyl chloride will give you toluenes. वुड्स फिटिंग प्रतिक्रिया का उपयोग क्लोरोबेंजीन को टोलिन में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। यह मिथाइल क्लोराइड की उपस्थिति में सोडियम पर प्रतिक्रिया करके आपको टोलिन देगा। द ऑक्सीडेशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC विच इज़ अ मिल्ड रीजेंट। डेकेनॉल टू डेकेनल। ऑक्सीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है और एल्डिहाइड को पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग करके उत्पादों के रूप में प्राप्त किया जाता है जो एक हल्का अभिकर्मक है। 18. हाउ डू थर्मोप्लास्टिक डिफर फ्रॉम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग बहुलकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं।
The key difference between thermoplastic and thermosetting plastics involves the fact that thermoplastic can melt under heat after curing, while thermoset plastic keep their form and remain solid under heat once cured. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच महत्वपूर्ण अंतर में यह तथ्य शामिल है कि थर्मोप्लास्टिक इलाज के बाद गर्मी में पिघल सकता है, जबकि थर्मोसेट प्लास्टिक अपना रूप बनाए रखता है और एक बार ठीक होने के बाद गर्मी में ठोस रहता है। 19. Name the polymer which is formed by the condensation of 3-hydroxybutanic acid and 3-hydroxypentonic acid. Give the structure of the polymer formed. 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनिक अम्ल और 3-हाइड्रोक्सीपेंटोइक अम्ल के संघन से बनने वाले बहुलक का नाम लिखिए। बनने वाले बहुलक की संरचना भी दीजिए। PHBB। 20A The observed and calculated molar mass of KCl is 38.75 gram per mole and 75.5 gram per mole respectively. Calculate the Van't Hoff factor. KCl का प्रेक्षित और परिकलित मोलर द्रव्यमान क्रमशः 38.75 ग्राम प्रति मोल और 75.5 ग्राम प्रति मोल है। वांट हॉफ कारक प्रकलित कीजिए। Van't Hoff factor is equal to normal molecular weight by observed molecular weight is equal to 74.5 gram per mole by 38.75 gram per mole is equal to 1.92। Van't Hoff कारक is equal to सामान्य अणु द्रव्यमान बटा असामान्य अणु द्रव्यमान बराबर 74.5 ग्राम पर मोल बटा 38.75 ग्राम पर मोल is equal to 1.92। 20B The relative lowering of vapor pressure produced by dissolving 7.2 gram of substance in 100 gram of water is 0.00715। Calculate the molar mass of the substance। 7.2 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम पानी में विलय करने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 0.00715 है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ फरवरी 2021 NIS 313 chemistry solved question paper। 21. Calculate the enthalpy change in the reaction 4NH3 plus 3O2 2N2 plus 6H2O 8 298 K given that enthalpy of formation for NH3 and H2O are 46.0 Kj per mole and minus 286.0 Kj per mole respectively. Also mention the standard enthalpy of formation of an element। 298 के ताप पर दी गई अभिक्रिया 4NH3 plus 3O2 2N2 plus 6H2O का एथैल्पी परिवर्तन परिकलित कीजिए। NH3 और H2O की संभवन एथैल्पी क्रमशः -46.0 Kj पर मोल और -286.0 Kj पर मोल है। किसी तत्व की मानक संभवन एंथैल्पी का भी उल्लेख कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। 22A व्हाट इज पॉलीप्रोटिक एसिड? गिव 2 एग्जाम्पल्स। बहुप्रोटिक अम्ल क्या होता है? 2 उदाहरण दीजिए। मेनी एसिड्स हैव मोर देन 1 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स। These are called polyprotic acids. The acids are called diprotic if there are 2 ionizable protons per molecule. Example H2SO2 H2CO3 and triprotic if there are 3 ionizable proton. Example H2PO4 etc. बहुत से अम्लों में एक से अधिक आयनन योग्य प्रोटॉन होते हैं, वे बहुप्रोटानी अम्ल कहलाते हैं। अम्लों को द्विप्रोटिक कहा जाता है यदि उसमें 2 आयनन योग्य प्रोटॉन प्रति अणु हों, जैसे H3SO3 HCO3 आदि, और त्रिप्रोटिक कहा जाता है यदि उसमें 3 आयनन योग्य प्रोटॉन हों, जैसे H3PO4 आदि। 22B कैलकुलेट द pH ऑफ 1 × 10⁻³ m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। 1 × 10⁻³ m NaOH के जलीय विलयन की pH परिकलित कीजिए।
पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। 23. Explain the following. 1. Although lithium has the most negative E0 value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium with least negative E0 in the group. यदि भी लिथियम का E0 मान अधिकतम ऋणात्मक है, पानी से इसकी अभिक्रिया साधारणतः सोडियम जिसका समूह में सबसे कम ऋणात्मक E0 होता है की तुलना में कम प्रबल होती है। Due to small 6 high IP value and very high hydration energy, lithium reacts with water less vigorously. छोटे 6 उच्च IP मूल्य और बहुत अधिक जलयोजन ऊर्जा के कारण लिथियम पानी के साथ कम शक्ति से प्रतिक्रिया करता है। 2. लिथियम shows properties similar to मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम के समान गुणधर्म दर्शाता है। These two elements resemble each other in the following properties. 1. Both Li and Mg decompose water very slowly with the liberation of hydrogen. 2. Both Li and Mg from nitrides, Li directly and Mg on burning in nitrogen. 2. ये दोनों तत्व निम्नलिखित गुणों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1. Li और Mg दोनों ही हाइड्रोजन मुक्त होने पर जल का बहुत धीरे धीरे अपघटन करते हैं। 2. Li और Mg दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, Li सीधे और Mg नाइट्रोजन में जलने पर। 3. Zr atomic number 40 and HF atomic number 72 have almost same atomic radii. Zr परमाणु क्रमांक 40 और HF परमाणु क्रमांक 72 का परमाणु आकार लगभग एक समान होता है। In the case of post-lanthanide elements like HF, 4F subshell is filled and it is not very effective at shielding the outer shell electrons. Therefore, Zr and HF have almost similar atomic radii. पोस्ट-लैंथेनाइड तत्वों जैसे HF के मामले में 4F सबसेल भरा होता है और यह बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन को परिचित करने में बहुत प्रभावी नहीं होता है। इसलिए Zr और HF की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्रकृति में संक्रमण तत्व साधारणतः अनुचुंबकीय होते हैं। Transition metals are paramagnetic because they have unpaired electrons in their 3d or 4s orbitals. संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं क्योंकि उनके 3d या 4s कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 24. Complete the following reactions. 1. Al2O3 plus 2NaOH 2NaAl2 plus H2O. 2. O3 plus 2 FeSO4 plus H2SO4 Fe2SO4 plus O2 plus H2O. 3. K2Cr2O7 plus H2SO4 plus 3SO2 Cr2SO4 plus K2SO4 plus H2O. 4. 6xEF4 plus 12H2O 4xe plus 2xeO3 plus 24HF plus 3O2. 25. Illustrate the following reactions giving a chemical equation for each. A. Kolbe's reaction. B. Hofmann's bromamide reaction. निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। A. कोल्बे अभिक्रिया। B. हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। Kolbe reaction. It involves sodium pentoxide which is allowed to absorb carbon dioxide and then heated under a pressure of CO2 to 398 K. Sodium silicate so obtained on acidification yield salicylic acid. कोल्बे अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड पर अवशोषण करने दिया जाता है। इसके बाद उसे CO2 के दाब पर एवं 398 के तक गर्म किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम सैलिसिलेट के अम्लीकरण से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हॉफमैन bromamide reaction. Aliphatic amide on treatment with bromine and a strong base like potassium hydroxide are converted into primary amines having one carbon less than those present in the starting amide. Thus, ethanamine is obtained by treating propanamide with bromine and KOH. हाफ ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा ब्रोमीन और प्रबल क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा एलिफैटिक एमाइड
प्राथमिक एमीन बनाते हैं जिनमें आरंभिक एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। अतः प्रोपेनेमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया से एथेनेमीन प्राप्त होती है। 26A. Arrange the following in order of their increasing stability: RCH2, R2CH, R3C. Justify your answer. निम्नलिखित को उनके स्थायित्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। RCH2, R2CH, R3C। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। Stability of carbocations. Let us consider the following carbocations: a primary carbocation, a secondary carbocation, a tertiary carbocation. A carbocation is classified as primary, secondary or tertiary depending upon whether the positively charged carbon atom is linked to 1, 2 or 3 carbon atoms respectively. Here, as the number of alkyl groups attached to the positively charged carbon atoms increases, the stability of the carbocation also increases. This is because alkyl groups are electron releasing in nature and help in the stabilization of the positive charge on the carbon atom of the carbonation. कार्बोधनायन को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण क्या कार्बन परमाणु क्रमशः 1, 2 या 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है पर निर्भर करता है। यहाँ पर जैसे ही धनात्मक अवशोषित कार्बन से संलग्नित एल्काइन समूह की संख्या बढ़ती है, कार्बोधनायनों का स्थायित्व भी बढ़ता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं और कार्बोधनायन के कार्बन परमाणु पर धनावेश को स्थायित्व देने में सहायक होते हैं। इस प्रकार तृतीयक कार्बोधनायन द्वितीयक कार्बोधनायन की अपेक्षा और द्वितीयक कार्बोधनायन प्राथमिक कार्बोधनायन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। B. How will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में किस प्रकार विभेद करेंगे? An alcohol is distinguished in primary, secondary or tertiary depending on how many carbons are attached to the carbon bearing the hydroxyl. Primary alcohols have no other carbon, secondary ones have one and tertiary alcohol have two. अल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोक्साइल वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। प्राथमिक अल्कोहल में कोई अन्य कार्बन नहीं होता है, द्वितीयक अल्कोहल में एक और तृतीयक अल्कोहल में 2 होते हैं। 27A. Which one in the pairs is more covalent and why? दिए गए युग्मों में कौन सा अधिक सहसंयोजक है और क्यों? 1. AgCl, AgI. 2. LiCl, KCl. AgI is more covalent than AgCl. This is because I negative ion is larger in size than Cl negative ion and hence is more polarized than Cl negative ion. AgCl की तुलना में AgI अधिक सहसंयोजक है इसलिए क्योंकि I निगेटिव आयन आकार में Cl निगेटिव आयन से बड़ा है और इसलिए Cl निगेटिव आयन से अधिक ध्रुवीकृत है। Li stay at second period and K stays at fourth period. So Li plus ion is shorter in size and has the greater tendency to polarize diffused electrons. That is, LiCl is more covalent. Li दूसरे आवर्त में रहता है और K चौथे आवर्त पर रहता है, इसलिए Li प्लस आयन आकार में छोटा है और इसमें डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण करने की प्रवृत्ति अधिक है, यानी LiCl अधिक सहसंयोजक है। 27B. Predict the molecular geometrics of AX4 type molecules having 1. 4 bond pairs and no lone pairs, 2. 2 bond pairs and 2 lone pairs. Justify your answer. AX4 प्रकार के अणुओं की आणविक ज्यामितियों की प्रागैतिक कीजिए जब उनमें है 1. 4 अबंध युग्म और 0 एकक युग्म तथा 2 अबंध युग्म और 2 एकक युग्म। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 1. Tetrahedron, example CH4. 2. Angular or bent, example H2O. 27C. Be2 molecules does not exist. Explain on the basis of molecular orbital theory. Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होता है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। The electronic configuration of beryllium is 1s2 2s2. From the electronic configuration it is clear that there is no singly filled atomic orbital present in beryllium.
Without the half-filled orbital, the overlapping is not possible. Therefore, Be2 molecule does not exist. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि बेरिलियम में कोई एकल भरा हुआ परमाणु कक्षक मौजूद नहीं है। आधे भरे कक्षक के बिना अतिव्यापन संभव नहीं है, इसलिए Be2 अणु का अस्तित्व नहीं है। 28A डिराइव द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक K की इकाइयों को व्युत्पन्न कीजिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट इज टाइम पावर -1। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर मोल L पर सेकेंड। 28B डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। हाउ मोलर कंडक्टिविटी वेरीज विथ कंसंट्रेशन। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता के साथ मोलर चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन। Variation of molar and equivalent conductivity with concentration. As the solution is diluted, its molar conductivity increases. Lambda m is given as lambda m is equal to 1000 K by m, where K is conductivity and m is molar concentration. मोलर चालकता एक निश्चित सांद्रता वाले विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा बनने वाले समस्त आयनों का चालकता बल है। सांद्रता के साथ मोलर और तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन। जब विलयन का अनुकरण किया जाता है तो इसके आयनों की संख्या घटती है। लैम्डा m को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 K by m। यहाँ K वैद्युत चालकता है और m मोलर सांद्रता है। 28C डिफाइन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम। विलयता उत्पाद और विलयता साम्य को परिभाषित कीजिए। In an aqueous solution of a springly soluble salt, an equilibrium exists between the undissolved salt and the ion obtained from the dissolved salt. This is called solubility equilibrium. The product of the concentration of the ions in the solubility equilibrium is a constant called solubility product and is proportional to the solubility of the springly soluble salt. अल्प घुलनशील लवण के जलीय विलयन में घुलनशील लवण से प्राप्त आयनों और अघुलनशील लवणों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। यह विलयता साम्य कहलाता है। विलयता साम्य में उत्पादों के आयनों की सांद्रता स्थिर होती है, जिसे विलयता उत्पाद कहते हैं, और यह अल्प घुलनशील लवणों की विलयता के अनुपातिक होता है। अल्प घुलनशील लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से कम होती है। यह सम आयन प्रभाव कहलाता है और गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। 29A FeS2O6 2+ ion complex is paramagnetic, whereas FeCN6 4 negative ion is dimagnetic. Explain on the basis of crystal field theory. FeS2O6 2+ आयन संकुल अनुचुंबकीय होता है, जबकि FeCN6 4- आयन संकुल प्रतिचुंबकीय। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और आंसर देखें। 29B राइट द IUPAC नेम, coordination number and oxidation state of cobalt in COEN2H2O CN2+ ion। COEN2H2O CN2+ ion का IUPAC नाम, उपसंयोजक संख्या और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। IUPAC नेम एक्वा सियानोबीज, इथिलीन डाइअमीन, कोबाल्ट 3 ion, coordination number is 6, oxidation state is +3। 29C what is linkage isomerism? Give one example। बंधनी साम्यवयवता क्या होती है, इसका एक उदाहरण दीजिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म complexes in which linkage of ligand is different, for example CONH3 5 SCN2+ ion and CONH3 5 NCS2+ ion। बंधनी समावयवता ऐसे
संकुलें जिनमें लिगंड के बंधन भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए CONH3 SCN2+ आयन और CONH3 NCS2+ आयन। 30. प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और आंसर देखें। सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ फरवरी 2021 NIS 313 केमिस्ट्री सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर।